डॉक्टर दीपक कुमार होटा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक BEML से अनुरोध करती हूं कि कृपया स्वागत संबोधन करें। डॉक्टर दीपक कुमार होटा। नमस्कार। माननीय रक्षा मंत्री जी, सचिव रक्षा उत्पादन, BEML परिवार के सहयोगियों और मित्रों, हमारे माननीय रक्षा मंत्री का BEML में औपचारिक रूप से स्वागत करने मेरा सौभाग्य महसूस करता हूं। रक्षा मंत्री महोदय हमेशा हमारे BEML को भारी प्रोत्साहन और समर्थन दे रहे हैं और ये यात्रा उसी का एक सच्चा प्रमाण भी है। In this context, it would not be out of place for me to say that for few years in the past, we had very less orders in defense and we had idle capacity. But sir, now with your blessings, we are flooded with orders, and the defense orders, sir, this year so far is almost 6 times the order that we got in the last 5 years. Thank you, sir. BEML was born in the womb of Atmanirbharta. We were part of Hindustan Aircraft Corporation. जब आत्मनिर्भरता की बात चली उस ज़माने में तो BEML का स्थापना किया गया. We were there to manufacture earth moving equipments in the 1960s, and it has always been in the forefront to support our defense forces and to be abreast with the latest state-of-art military equipment. With our dedicated and very well accomplished R&D establishment, BEML has been continuously churning out new products, Atmanirbhar products, increasing the indigenization levels of its products. I am proud to say that BEML is closely aligned and fully committed to the visionary initiative of the Honorable Prime Minister for Atmanirbharta and your inspirational encouragement, Raksha Mantri ji, for making in India, making in BEML. The proficiency gained has helped the company to export its products to over 68 countries. Though we are a DPSU, we have other verticals like mining and construction, rail and metro, and support the key sectors of the economy. BEML's foray into metro manufacturing has been the defining moment for us in the urban transportation scenario in India. With a major market share in the country in direct competition with well-established international players, BEML has made a mark and is the only Indian company in the fray. BEML's presence in almost all major metro networks is evidence of its technical prowess, and now we are honored that Honorable Raksha Mantri will be inaugurating the unattended train operation, first time made in India, indigenously designed and developed. In the recent past, the Honorable Prime Minister had inaugurated the unattended train operation, sir, for Delhi Metro, and that time we were not eligible because it was a foreign design. But sir, by the way, that was made by us. BEML ने उसको बनाया था और उसी का उद्घाटन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने. सर, मुंबई मेट्रो MRS1 मॉकअप कार MMRDA को हमने अहेड ऑफ शेड्यूल दिया, जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया. The design and production activities for the entire 576 coaches, which is 96 train sets, उसका पहला ट्रेन सेट सर 23 तारीख को यहाँ से रवाना होगा और आज सर आपके कर कमलों से उसका उद्घाटन होगा, अनवीलिंग होगा. मैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि BEML संपूर्ण रूप से, एंड ये मैं मेरे यूनियन और एसोसिएशन साथियों के बिहाफ पे कहना चाहता हूँ कि हम लोग BEML में वी विल कंटिन्यू टू सर्व द नेशन, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, हम देश के सेवा में रहेंगे. एंड आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल माय कलीग्स, माय यूनियन फ्रेंड्स, माय एसोसिएशन फ्रेंड्स, SC/ST एसोसिएशन फ्रेंड्स. सर, हमारे यहाँ वर्क कल्चर इज़ फैंटास्टिक, यू वुड हैव सीन इट सर, एंड दिस इज द assurance I want to give it to you. नमस्कार, धन्यवाद. थैंक यू सर. हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आज माननीय रक्षा मंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं. Ladies and gentlemen, now the moment has come for the inauguration, launchings and unveiling of our product by the Honorable Raksha Mantri. GSLV Mark III
a 3-stage heavy lift launch vehicle has been developed by ISRO, for which every Indian is proud of. BEML has bagged the developmental orders from VSSC for light alloy structures for GSLV Mark III program. The structures fabricated by BEML will be part of satellite launch vehicle for Gaganyaan. These structures will be manufactured at BEML Bangalore complex, that is this complex, sir, and the required facilities has already been established. माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि आप कृपया बटन दबाकर इसका उद्घाटन करें. So the black remote, one has to be pressed with the black remote. It's a virtual inauguration. A huge round of applause, please. It's a new business avenue for all of us. A huge round of applause. BEML आत्मनिर्भरता की ओर प्रतिबद्ध है. इस दिशा में BEML टट्रा केबिन का निर्माण भारत में करेगी. यह केबिन सारे हाई मोबिलिटी व्हीकल के लिए भारतीय सेना को उपलब्ध कराएगी. आई रिक्वेस्ट माननीय रक्षा मंत्री जी टू प्रेस द रिमोट, ब्लैक रिमोट विथ नंबर 2. Thank you very much, sir. We are proud to announce that the first indigenously designed and manufactured driverless train set of MRS-1 project of MMRDA Mumbai will be unveiled by Honorable Raksha Mantri today. On this occasion, we would like to showcase our journey in acquiring the capabilities of becoming the world-class metro manufacturer through the release of a commemorative booklet. आदरणीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पुस्तिका का विमोचन करें. Thank you, sir. Now the moment has come to unveil the queen of the show today, the MRS-1 Metro car to be supplied to MMRDA Mumbai. We request Honorable Raksha Mantri ji to unveil the queen by pressing the white remote with number 3. Being a proud manufacturer of MRS-1 Metro car, I request a huge round of applause for this event. Yes, it has been made possible by you all. A huge round of applause.
May I now request CMD Dr. Deepak Kumar Hota to accompany Honorable Raksha Mantri ji and Secretary Sir for the inspection of the metro car. श्री राजकुमार जी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, एंड श्री दीपक होता, सीएमडी बीएमएल, और बीएमएल के सभी हमारे ऑफिसर्स, कर्मचारी गण नहीं कहना चाहता हूं, ऑफिसर्स से लेकर जितने लोग यहां पर काम कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा जो भी मौजूद हैं यहां पर वो सभी आत्मनिर्भर भारत के वैरियर हैं। वह कर्मचारी नहीं हैं, आत्मनिर्भर भारत के वैरियर हैं। और जो आज ये दृश्य अपनी आंखों के सामने हमने देखा है, 1.5 वर्षों से मैं रक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, लेकिन मुझे यह कल्पना नहीं थी कि बीएमएल में एक ऐसा काम हो रहा है। और जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा है उसके बारे में मैंने कहा सीएमडी मिस्टर दीपक होता जी को कि देश को भी इस बात की जानकारी जानी चाहिए कि बीएमएल में हो क्या रहा है। देश को जानकारी नहीं है। और मैं कुछ बोलूं उसके पहले तो सचमुच मैं आत्मनिर्भर भारत के आप सभी जैसे बहादुर वॉरियर्स का मैं शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं। और आज बीएमएल के इस प्रांगण में आप सभी के बीच आकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है। और कल मैं हमारे देश के सम्मानित वेटरन्स भाइयों को मैं संबोधित कर रहा था, और आज आप जैसे मेहनतकश साइंस और टेक्नोलॉजी के सहारे इस कंट्री को सर्व करने वाले लोगों के बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, अभी आप लोगों के दिन रात के परिश्रम से बने हुए यह जो सामने खड़ा है अनमैन्ड मेट्रो, इसका अनावरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और सचमुच जब मैं इसका अनावरण करने के लिए मैं भीतर जब गया इसको इंस्पेक्ट करने के लिए, तो मैंने कहा मैं बैठकर भी इसमें आनंद लेना चाहता हूं, और हम लोगों ने बैठकर इस मेट्रो में आनंद लिया। मैंने कोई कल्पना नहीं कर सकता, पहले ये मेट्रो चलेगी तो कोई कल्पना नहीं करेगा कि अनमैन्ड है, इस पर कोई आदमी इसको चला नहीं रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये मेट्रो है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ एरोस्पेस फैसिलिटी और एचएम व्हीकल केबिन का भी उद्घाटन करना मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही सुखद रहा है। यह सभी उद्घाटन केवल बीएमएल ही नहीं बल्कि हमारी नेशनल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का क्या इम्पॉर्टेंस है उस दिशा में यह उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और इस प्रोजेक्ट से जुड़े मैं सभी लोगों के साथ मैं पूरे देश को भी, आपको तो बधाई देता ही हूं, मैं समस्त देशवासियों को भी इन सब सारे प्रोजेक्ट्स के लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और साथियों, आज आपको मालूम है कि आज सारे देश भर में आज के दिन को हम सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। कल ही और कुछ स्थानों पर आज भी मकर संक्रांति का पर्व, जिसे हम कहीं पोंगल कहते हैं, कहीं बिहू कहते हैं, कहीं लोहड़ी कहते हैं, यह पर्व भी मनाए जाते हैं। इसकी भी मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, और इसके साथ ही नए वर्ष की, न्यू ईयर की भी आप सबको मैं अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। मेजर कंट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का है।
वह चाहे कैपिटल फॉर्मेशन हो अथवा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे ले जाने का हो, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। और आज भी जब देश दुनिया सारी कोविड-19 इस पैंडेमिक के संकट से जूझ रही थी, उस समय भी हमारी जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, खासकर हमारी डीपीएसयू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसके वैरियर्स की तरह आगे आकर इसके खिलाफ, इस पैंडेमिक के खिलाफ वो लगता था कि इसे जंग कर रहे हों, और उन्होंने अपने काम में कोई कमी नहीं आने दी, बल्कि लगातार इस पैंडेमिक के बावजूद वह काम करते रहे। इसके लिए भी मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, और इससे भी उत्साहजनक, बल्कि मैं कहूं कि आश्चर्य की बात है कि हाल ही में मैंने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के रिव्यू में देखा कि उसकी कार्य क्षमता पर इस कोविड पैंडेमिक के दौरान कोई भी एडवर्स इंपैक्ट नहीं हुआ है। इतने संकटों का सामना करते हुए भी वह अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में पूरी तरह से कामयाब रहे। इसके लिए भी मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं और आप सबकी तहे दिल मैं सराहना भी करता हूं। बीएमएल भी इसका अपवाद नहीं है। आपने भी इस टेस्टिंग टाइम में अपनी वर्क क्षमता का जो परिचय दिया है, वह आपकी मेहनत यानी हार्ड वर्क, आपकी लगन, आपका डेडिकेशन, आपका जोश, आपका इंथुजियाज्म और जज्बा, इसको एक्सप्रेस करता है। बिना जज्बे के कोई काम नहीं हो सकता, बिना इंथुजियाज्म के कोई काम नहीं हो सकता, बिना हार्ड वर्क के कोई काम नहीं हो सकता। यह सब सारी चीजें आपके अंदर इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी देश को देखने को मिली हैं। और मुझे बताया गया है कि पिछले साल आपका वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़ था, और इस साल लगता है कि आप लोग वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो पिछले साल 3000 करोड़ था, उसको भी क्रॉस कर जाएंगे। या कहां तक जाएगा मैं नहीं कह सकता हूं, इसको भी आप क्रॉस करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं इसे एक मेजर अचीवमेंट मानता हूं, या कोई माइनर अचीवमेंट नहीं है, इसे मैं मेजर अचीवमेंट मानता हूं। और बीएमएल आज से ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के समय से ये रेल कोच का निर्माण करने वाली सबसे पहली एक संस्था है, सबसे पहला ये ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी अन्य बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसके बाद में आए, और यह देश में चल रही सभी मेट्रो की लगभग आधी हिस्सेदार और अपने बल पर उनका इंडिजनाइजेशन कर रही है। डिफेंस और माइनिंग के क्षेत्र में भी यह ऑर्गेनाइजेशन किसी से कम नहीं है। हमारी सीमाओं पर चाहे रोड बनाना हो, चाहे सुरक्षा के लिए आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, माइन प्लाउ, ब्रिज लॉन्चर या यातायात और सामान ले जाने इत्यादि के लिए कोई उपकरण की बात हो, बीएमएल सदैव इन सब मामलों में आगे रहा है। और यह ऑर्गेनाइजेशन आज हमारे बदलते भारत के साथ भी कदम से कदम मिलाकर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और साथियों, आज हम बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहते, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में बदलाव और कर्म के महत्व की बात जहाँ आती है, वहाँ कर्नाटक की धरती के आदि पुत्र भगवान बसवेश्वर का प्रसंग स्वतः याद आ जाता है। और इन विषयों पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जिसका मैं यहाँ बहुत ही ब्रीफली उल्लेख करना चाहूँगा। वह कहते हैं, स्थावरक्का लिवंतु जंगम का लिविल्ला। इसे आसान शब्दों में यदि कहना हो तो कह सकते हैं कि रुकी चीजें ज्यादा चलती नहीं और चलती चीजें ज्यादा रुकती नहीं। यानी जिसका विकास, जिसमें परिवर्तन होना बंद हो गया,
वे ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकती हैं। यह बात कही थी भगवान बसवेश्वर ने। और जो समय के साथ चल रही है, बदल रही है, वे रुकावटों को पार कर भी हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी और कर्म की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमें इसी मंत्र के साथ अपने जीवन में, मेरे दोस्तों, हम सबको आगे बढ़ना है। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेंगलुरु ने पिछले कुछ वर्षों में अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस की है, अभूतपूर्व प्रगति की है। इसरो हो या HAL या DRDO, BDL या BEL या BML, ये सभी पिछले कुछ समय में जिन नई नई अचीवमेंट्स के साथ सामने आए हैं, उन्होंने न केवल अपना बल्कि पूरे देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है इन सब सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने। BML में ही हाल ही में मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ जोड़ने के उद्देश्य से बनाए गए इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया था। 6 महीने के भीतर ही उसका परिणाम आज हमारे सामने दिख रहा है और यह बड़ी बात है, इसकी मैं पुनः सराहना करना चाहता हूँ। इसी तरह अन्य ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हाल के वर्षों में जिन नई नई हाइट्स को टच किया है, वह भारत को एक बिल्कुल तकनीकी संपन्न, टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी तरह से रिच एक कंट्री बनाने में बहुत ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमारी सरकार ने हाल ही में किए गए कई पॉलिसी चेंजेस से भी आप, पॉलिसी रिलेटेड चेंजेस से भी आप अच्छी तरह परिचित होंगे। वह चाहे DPPP का बदलाव हो अथवा DAP द्वारा इंडिजिनस कंटेंट वाले जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, प्लेटफॉर्म हैं, कि खरीद की पॉलिसी में आया हुआ बदलाव हो। इसी तरह मैंडेटरी लोकल खरीद में भी बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हाल ही में 50,000 करोड़ रुपए के 83 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद का प्रोसेस पर मुहर लगी है और मैं मानता हूं कि इस दिशा में एक बहुत बड़ा ये कदम है। और 83 या फाइटर, जिसमें से 73 हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 10 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं और इसकी जिम्मेदारी किसी के कंधों पर सौंपी गई है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड न केवल देश की बल्कि दुनिया की एक मानी जानी कंपनी है और यह कर्नाटक सहित हमारे देश की HAL भी एक शान है। यह उदाहरण यह बताने के लिए काफ़ी है कि BML के लिए भी भविष्य में एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं 83 या तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जो HAL को मिला है, इसके परिणाम स्वरूप 50,000 अप्रॉक्सीमेटली 50,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और इसमें मोर देन 500 छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज, MSMEs, उनको भी काम करने का अवसर मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, L&T, वेमटेक, यह सब सारी तो काम कर ही रही हैं। साथियों, इसलिए आप लोगों द्वारा डेवलप किया हुआ छोटे से छोटा प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही नेशनल इम्पॉर्टेंस का होता है, राष्ट्रीय महत्व का होता है। और मुझे मालूम है कि यह बात भली भांति समझते हैं आप और इस दिशा में लगातार आप प्रयत्न भी कर रहे हैं। और आज का आयोजन मैं मानता हूं कि उसी का यह परिणाम है। देखने में सुंदर और जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स होते हैं, यानी से अंतर्राष्ट्रीय मानक बोलते हैं, देखने में सुंदर और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर, माने इंटरनेशनल पैरामीटर पर, इस मेट्रो में मुझे बताया गया है
कि एनर्जी की बहुत ही कम कंजम्पशन होती है, बड़ी बात है। और उसमें भी एनर्जी कंजम्पशन के बाद जो अवशेष बचता है उसे भी उपयोग में लाया जा सकेगा, माने उसकी रिसाइकलिंग भी हो सकती है। क्यों दीपक कुमार? रीजनरेशन। और आज जहां दुनिया पॉल्यूशन से जूझ रही है, वहां ऐसी निर्मितियां एक स्वच्छ स्वस्थ समाज की राह प्रशस्त करती हैं। इसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, मुझे यह भी बताया गया है कि यह मेट्रो 63% इंडिजिनस है, जो अगले 2-3 साल में 75% तक इंडिजिनस हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आप जैसे वैरियर यदि आगे काम करते रहे तो वह दिन दूर नहीं है कि यह मेट्रो 100% इंडिजिनस हो जाएगी, 100% इंडिजिनस हो जाएगी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया गया है, उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, ऐसा मैं मानता हूं। और यह देश के बाकी संगठनों के लिए भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा का स्रोत है। और इसी के प्रेरणा स्वरूप हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में खड़ी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके बदौलत हम अपने $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट और $25 बिलियन के डिफेंस इंडस्ट्री के टारगेट निश्चित रूप से हासिल कर सकेंगे, यह हमारा विश्वास है। साथियों, इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वह है देश में टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्हीकल्स की शुरुआत, यह जो आपके सामने खड़ी है। साथियों, यह मेट्रो हमें एक विश्वास और भरोसा पैदा करती है कि हम भविष्य में बॉर्डर एरिया सहित उन क्षेत्रों में भी इस टेक्नोलॉजी को ला सकेंगे जहां बराबर इंसान के लिए जाने में खतरा रहता है। बॉर्डर पर भी हम इसको ले जा सकते हैं। एक दिन वह आएगा कि ऐसी भी एक अनमैन्ड ये ट्रेन तैयार होगी, मेट्रो तैयार होगी। साथियों, BML इसे अच्छी तरह समझ सकता है, क्योंकि सिविल और डिफेंस दोनों ही जगहों पर यह अपनी सेवाएं देता है। आज अगर हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेट्रो चला सकते हैं, अनमैन्ड मेट्रो के बजाय मैं इसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेट्रो कह रहा हूं। यदि आज हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेट्रो चला सकते हैं तो कल को हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैंक्स और फाइटर प्लेन्स के बारे में भी सोच सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि यह भी हमारा स्वप्न कभी न कभी साकार होकर रहेगा। और यह हमारी उच्चतम तकनीक, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल तो होगा ही, साथ ही हमारी सीमाओं के साथ साथ हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में एक बहुत ही बड़ा कदम होगा, जो हमारे लिए यह अनमोल होगा, यानी जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। साथियों, आज के अवसर पर बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार फिर इस मेट्रो के उद्घाटन पर अपनी प्रसन्नता, अपनी हैप्पीनेस यह जाहिर करता हूं। और मैं आप सबको मैं तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी आपको भी और आपके परिवार के सदस्यों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिली है। और हम अपने वॉरियर्स, आपने जिनको वॉरियर्स कहा, अपने वॉरियर्स के तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि हम अपने इस देश को उच्च से उच्चतम स्तर तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद सर। वी हैव द वोट ऑफ थैंक्स बाय आवर डायरेक्टर रेल एंड मेट्रो। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री राजकुमार जी, CMD BML, invited guests, ladies and gentlemen, it's my privilege to propose the vote of thanks on behalf of the complete BML family. A glorious addition has been added in the annals of BML history. Today,
by way of unveiling of the first indigenously designed, developed and manufactured driverless train set for the MRS-1 project. It is a major step towards Atmanirbhar Bharat. BML is doubly rejoiced that the Honorable Raksha Mantri ji is part of our celebrations. I wholeheartedly, on behalf of BML, thank Honorable Raksha Mantri ji, who always inspires the citizens of India with his resoluteness in ensuring the security of our motherland and nurturing the defense PSUs, for giving his consent amidst his busy schedule to participate in this function and unveil the driverless train set, and also virtually unveil the aerospace assembly hangar and indigenous Tatra cabin. Thank you very much, sir. Dhanyavad, sir. I sincerely thank Sri Rajkumar, Secretary Defense Production, who always lends his supporting hand to BML in its endeavor in excelling in the business, for attending this function amidst his busy schedule and gracing this occasion. Thank you, sir. I also thank our beloved CMD, who is the striving and guiding force of BML, for his unstinted support in achieving this milestone. I'll be failing in my duty if I do not recognize the untiring efforts put in by all BML employees and executives who have worked round the clock to make this historic occasion happen today. I thank the state and central government officials, particularly police and other security officials, who have helped in conducting this function in an orderly manner. I also thank the event organizers for making this function a grand success. Thank you, one and all. Thank you, sir.